Hello everyone. Hope you all are safe and healthy. Today we will discuss some questions given in your book based on our previous topics, and I'll introduce you with some new exciting topics. So let's start. As you can see in page number 1 of your book, here few questions are given. So we will discuss these questions separately. Question number 1. Have you looked at things from different sides? Do they look the same or different? I think that this question you can solve very easily because we have discussed about this topic in my previous video. So now see, you know very well that when you look the objects from different sides, so they look different. So simply you can answer here, yes, I have looked at things from different sides. They look different when seen from different sides. Question number 2. Look at the pictures drawn here. How does the table look from the side? Which picture is from the top? Now here you can see the two pictures of table is given. First one is this and the second one is this. Now what it is asking that which look is side view and which look is top view. So you can simply say that first picture is giving us the side view and the second picture is giving us the top view. Kindly turn your page. Now another question is given here. What it is saying that a cat is peeping into a classroom. Can you help her find out where the teacher is? What this writer is saying that can you help this cat who is peeping inside the class, and can you tell the view according to that cat of the teacher? So yes, we can simply answer that the teacher is standing at the front of the students in the class, as we can see the position of the teacher also given here. Now another question is given. You can see what is here. Copy these shapes on the dot grid. Note that some lines in the shapes are straight and some are not. So from here you have to see that some lines are straight, some lines are not, and when we are using this dot grid, so we will be able to draw some patterns as shown here. So now it has given you another question that use the dot grid given below to draw your own designs and shapes. So in this question what you have to do, students, that as you have seen in earlier question, I told you that some lines are straight, some can be of different types. So in that way only, by using that lines, by using this dot grid, you can draw any design, any shape in any pattern. You can draw house, you can draw leaf, you can draw kite, you can draw hut, whatever you want, that type of things you can draw here. Now see what is given here. Another question. Complete these figures to make squares and rectangles. So as two questions of grid we have discussed, so I think that now you will be able to complete this. As in previous questions answers I have already explained you, but now in some questions you will do answers by yourself, and I hope that this is very easy you can do, because here half of the shape is given and half shape you can complete by putting lines on these grids. Okay, now let me introduce with you with new topic, and that is symmetry. Today we are going to learn something about symmetry as well as mirror halves. So for doing the things or the questions related to mirror half, first we know about symmetry. Here what is the question? What is line of symmetry? It is asking to you what is line of symmetry. Though I'll explain you with different types of shapes, but let's see what is written here. We often find symmetry in things around us. What it is telling us? It is telling us that we can find the symmetry in whatever the things are present in our surrounding. We say there is a symmetry when the exact reflection or mirror image of a line, shape or objects get created. Please focus here. What it is saying? It is saying that हम कब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट में सिमिट्री है? वी से देयर इज़ अ सिमिट्री व्हेन द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट का बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन हो और मिरर इमेज ऑफ अ लाइन,
या फिर किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज हो। मिरर इमेज माने जैसा कि ऑब्जेक्ट सामने रखा है बिल्कुल वैसा ही ऑब्जेक्ट दिखे, या फिर शेप और ऑब्जेक्ट्स गेट क्रिएटेड, या फिर उस जो हमें दिया गया है बिल्कुल उसी का ही जैसा दूसरा हम क्रिएट कर सकें। तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग में क्या होती है, सिमेट्री होती है। जैसे देखिए अनदर फर्दर इट हैज़ गिवन हियर द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी डिफाइंड एज द एक्सिस और इमेजिनरी लाइन। तो हम क्या कह रहे हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री को क्या कह सकते हैं, हम लाइन ऑफ सिमेट्री को एक एक्सिस या इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द शेप और ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट के बीच से पास करते हैं एंड डिवाइड इट इनटू आइडेंटिकल हाफ्स, और हम उस शेप को फिर दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कह रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ये हमसे कह रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में के सेंटर से, हम जब किसी ऑब्जेक्ट में सेंटर से कोई लाइन डालते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी लाइन। क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी लाइन। और वो इमेजिनरी लाइन आपके उस ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे या मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे, बट इक्वली, इक्वल डिवीज़न होगा। और वो डिवीज़न इक्वली ऐसा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट टू या मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स या वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स एक से दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल you can see on your skin there is one heart shape is given। आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन में अभी एक हार्ट शेप आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि इस हार्ट शेप के बीच में क्या करा है, मैंने एक लाइन डाली है। ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन, दिस इज लाइन, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नाउ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू कि जैसे हमने ये एक हार्ट शेप बनाया और जब हमने इसे सेंटर से एक लाइन डाली, आप क्या कर सकते हैं, सेंटर से एक लाइन डाल के दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप इमेजिन करिए, दोनों पार्ट को आप इमेजिन करिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट का, इट इज़ सिमिलर टू द सेकेंड पार्ट। एक एग्जाम्पल और देखिए सिमेट्री को समझने के लिए। यहाँ पे आपको क्या दिया है, बटरफ्लाई दी है। अब आप देखिए कि अगर ये बटरफ्लाई के बीच से जो मैंने लाइन डाली है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसे कि हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। ये बटरफ्लाई एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, एक पिक्चर हमने ले ली, जिससे हमने बीच से एक लाइन डाल दी। तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम इसके एक पार्ट को छुपा दें तो और दूसरे पार्ट को के सामने हम मिरर रखें तो बिल्कुल वैसा ही वो पार्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। मतलब कि लाइन जो सेंटर में डली है, इसके लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम दिखता है। नाउ यू कैन सी वन सीनरी इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास एक सीनरी है, इसे अच्छे से देखिए। इसका ये एक एंगल है सीनरी का, ये एक एंगल है सीनरी का, ये टॉप पोर्शन है सीनरी का, एंड दिस इज़ योर डाउन पोर्शन। अभी आप अच्छे से सीनरी को देखिए और आप खुद से इमेजिन करिए कि इस सीनरी में, इस पोर्ट्रेट में आप कहाँ कहाँ से लाइन डाल के, कहाँ कहाँ से इमेजिनरी लाइन डाल के आप इस पोर्ट्रेट को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए। अगर आप एक सेंटर से लाइन डालते हैं इस पोर्ट्रेट में तो आप देखते हैं कि इसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही पोर्शंस कैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये जो सेंटर से लाइन आ रही है, इसके आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड में देखिएगा तो आपको दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही साइड्स बिल्कुल सिमिलर मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप सेम देखें, जहाँ से ये आपको रेड लाइन दिख रही है, इस रेड लाइन से अगर इस सेंटर से भी अगर आप लाइन डालेंगे अक्रॉस इस पोर्ट्रेट के, तो अगेन व्हाट यू विल फाइंड दैट द टॉप पोर्शन ऑफ द पोर्ट्रेट एंड द डाउन पोर्शन ऑफ द पोर्ट्रेट आर सिमिलर। दोनों ही पोर्शन, ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट भी सिमिलर होगा। तो हमने क्या जाना अभी तक कि जब भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो हम उसे क्या कर रहे हैं, हम तभी डाल पा रहे हैं जब वो ऑब्जेक्ट हमारा आइडेंटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। नाउ प्लीज सी, I have drawn some shapes here।
आपके पास कुछ शेप्स हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन में जो आ रहे हैं। अब आप देखिए इन सारे शेप्स में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री डाली है। लाइन ऑफ सिमेट्री डाली है, क्यों डाल रहे हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डिवाइड द गिवन शेप्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो दिए गए शेप हैं इन्हें हम बराबरी के दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी शेप नंबर 1, सर्कल इज गिवन हियर। ये सर्कल है। अभी हम इस सर्कल से अगर सेंटर से लाइन डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही इक्वल हैं। लेफ्ट साइड अगर आप राइट साइड को ढकें तो सेमी सर्कल लेफ्ट साइड हो जाता है, और अगर आप लेफ्ट साइड को ढकें तो सेमी सर्कल राइट साइड हो जाता है। सिमिलरली आपके पास ये दूसरा शेप है जिसे कि आप पेंटागन कह सकते हैं। पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं। अभी इस शेप को आप देखिए, अगर इस शेप में हम सेंटर से लाइन डालते हैं, सेंटर से लाइन डालते हैं तो इस पेंटागन का लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन आपस में आइडेंटिकली सिमिलर हो जाता है। आइडेंटिकली सिमिलर मतलब कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही बिल्कुल आपस में बराबर हो जाती हैं। अब देखिए फिर से एक एग्जाम्पल, ये आपके पास रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में अगर हमने सेंटर से एक लाइन डाली है तो अब आपको क्या मिला है कि हम इस ऑब्जेक्ट्स को फिर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। सिमिलरली यू कैन सी फर्दर मोर ऑब्जेक्ट्स आर गिवन हियर। ट्राइंगल इज गिवन हियर। ट्राइंगल में हमने सेंटर से एक लाइन ऑफ सिमेट्री और यू कैन से एक्सिस और इमेजिनरी लाइन डाली है, which line is dividing this single triangle into 2 equal parts. And similarly we were having one more example of a square as well as this heart shape. These shapes you can see again that when we have drawn one line of symmetry here, so this line of symmetry has divided these shapes into 2 equal parts. Now let's discuss this line of symmetry with our very known alphabets. As you all know about these alphabets, ये अल्फ़ाबेट्स आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इनके बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, ना रिटन वर्क, ये कुछ नहीं हमें पता होता अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, और आप हर पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड मिरर हाफ्स अकॉर्डिंग टू दीज अल्फ़ाबेट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। अभी आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी शेप को या किसी भी थिंग को क्या कर दे रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। और कैसे इक्वल? आइडेंटिकली इक्वल, आइडेंटिकली सेम। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक से, जो दो पार्ट बिल्कुल एक से हैं उनमें डिवाइड कर रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए ए दिया है। अब ए में हमने क्या किया है, ए में हमने एक इमेजिनरी लाइन डाली है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से डाली है। और आपने वहाँ पे क्या देखा है कि इस ए को हमने दो आइडेंटिकली इक्वल पार्ट्स में क्या किया है, आइडेंटिकली हाफ में डिवाइड कर दिया है, हाफ कर दिया है। और दोनों हाफ पार्ट कैसे हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब लेफ्ट पोर्शन इज सिमिलर टू राइट पोर्शन। नाउ सिमिलरली यू कैन सी दैट वी हैव अनदर अल्फ़ाबेट बी। अब आप थोड़ा सा इस बी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे बी है, अभी हमने क्या किया, ए में जो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री डाली है वो तो हमने अलग तरीके से डाली है, और जो हमने बी में लाइन ऑफ सिमेट्री डाली है वो अलग तरीके से डाली है। अब यहाँ से मैं आपको एक नई चीज़ समझाऊंगी। जैसे अगर हमने ए में सीधी लाइन डाली है जिसे आपके कहते हैं स्ट्रेट लाइन, तो फिर हमने बी में यहाँ डिफरेंट टाइप की लाइन क्यों डाली? क्योंकि अगर हम जैसी लाइन हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ए में डाली थी, अगर बिल्कुल वैसी लाइन ऑफ सिमेट्री हम बी में डालते तो क्या हमारा बी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि बी का जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट साइड है वो दोनों आपस में बिल्कुल अलग हैं। वो डिवाइड तो हो जाएंगे बट इट विल नॉट बी आइडेंटिकल हाफ्स। वो आइडेंटिकल हाफ्स नहीं होंगे, वो सिर्फ डिवाइड होंगे। लेकिन हमने क्या करा, हमने जैसे ए में लाइन डाली थी वैसी लाइन नहीं डाली, उसे हमने डिफरेंट, अब हमने उसे सेंटर से डाल दिया है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? फिर समझने की कोशिश करिए कि जो अल्फ़ाबेट ए है उसमें हमारी कैसी लाइन आई है, हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, और जो अल्फ़ाबेट बी है उसमें हमारी कैसी लाइन आई है, वर्टिकल लाइन आई है।
कैसी लाइन आई है, वर्टिकल। तो इसमें हमने क्या करा है, वर्टिकल लाइन डाल दी, तो वर्टिकल लाइन की वजह से इसका टॉप पोर्शन और डाउन पोर्शन आइडेंटिकली इक्वल हो गया, आइडेंटिकल हाफ हो गए, ये टॉप और डाउन पोर्शन आइडेंटिकल हाफ हो गए। जबकि ए लेटर में क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आइडेंटिकल हाफ है। अब हम सी में कैसी लाइन ड्रॉ करें, अब देखिए सी में फिर से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन हमारा क्या दिखा रही है कि हम इसे टॉप पोर्शन और डाउन पोर्शन दोनों को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल हाफ कर सकते हैं। सिमिलरली वर्टिकल लाइन हमने डी में डाल दी। फर्दर मोर ऑब्जेक्ट्स अब देखें, जैसे एच आया है आपका, अल्फ़ाबेट सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, एच आया है। अब एच हमारा एक ऐसा अल्फ़ाबेट है यहाँ पे जिसमें कि अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, जो सेंटर से लाइन आ रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं तो हमारा एच, तो भी इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, आइडेंटिकल हाफ्स हैं, बिल्कुल आधे आधे बराबर में है। एंड सिमिलरली अगर हम इसमें क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन डालते हैं, वर्टिकल लाइन डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका टॉप पोर्शन और इसका डाउन पोर्शन वो भी आइडेंटिकली सेम है। सिमिलरली हम देख सकते हैं आई लेटर, आई को अगर हम देखेंगे तो आई में क्या है, आई को अगर हम स्ट्रेट लाइन से डिवाइड करते हैं तो भी वो आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट में डिवाइड हो जाता है, और अगर सेंटर से वर्टिकल लाइन डालते हैं तो भी वो आइडेंटिकल टॉप और आइडेंटिकल डाउन आ जाता है। अब जैसे हमारा शेप जे है, देखिए अब ध्यान से देखिए जे में आप देख सकते हैं कि अगर हम जे में स्ट्रेट लाइन डालेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम स्ट्रेट लाइन डालते हैं तो भी हमारा जे कोई इक्वल आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा। आप चाहें तो इस अल्फ़ाबेट को अपनी कॉपी में ड्रॉ करके और लाइन हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों डाल के देख सकते हैं। जब आप इस लेटर जे में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लाइन डालकर देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि इस जे को हम किसी भी तरीके से आइडेंटिकली डिवाइड नहीं कर सकते, आइडेंटिकली हाफ नहीं कर सकते। हाफ तो हो जाएगा, हाफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना, पर आइडेंटिकल हाफ मतलब डिवाइड होने के बाद जो पहला वाला पोर्शन और जो बाद वाला पोर्शन दोनों को ही एक सा आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हैं इसके बाद के है हमारा, के में क्या है, के में हम इसको आइडेंटिकल हाफ बनाने के लिए सिर्फ कौन सी लाइन डाल सकते हैं, वर्टिकल लाइन। सिर्फ कौन सी लाइन डाल सकते हैं, वर्टिकल लाइन। क्यों, क्योंकि जब हम वर्टिकल लाइन डालते हैं तो हमारे के का जो टॉप हाफ है वो डाउन हाफ के आइडेंटिकली इक्वल हो रहा है, राइट। लेकिन अगर इसी के में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, आप इसको कॉपी में बना के देख सकते हैं, अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे तो वी विल नॉट एबल टू डिवाइड दिस के इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। इन सब अल्फ़ाबेट्स में आप देख सकते हैं कि किस में हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के उसको आइडेंटिकल हाफ कर सकते हैं, किस में हम वर्टिकल लाइन डाल के आइडेंटिकल हाफ कर सकते हैं, किस में हम दोनों लाइंस डाल के हॉरिजॉन्टल भी डाल सकते हैं और वर्टिकल भी डाल सकते हैं तब आइडेंटिकल हाफ कर सकते हैं, और किस में हम किसी भी तरीके से उसे आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ आई हैव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टार। ये आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में एक स्टार है। अब हमें इसमें देखना है कि हम इस स्टार को कौन कौन से एरिया से हम इसमें लाइंस डालें कि ये आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाए। सो नाउ यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि जब हमने इस स्टार में एक सेंटर से लाइन डाली, और कैसी लाइन डाली है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, तो हमने देखा कि इसका लेफ्ट पोर्शन और इसका राइट पोर्शन क्या है, आइडेंटिकली सेम है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली थी वैसे ही अब हमने इस स्टार में एक वर्टिकल लाइन भी डाल दी, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डाली, तो हमने क्या देखा कि इसका टॉप पोर्शन इसके डाउन पोर्शन के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जब हम इसे इक्वली हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देंगे।
सिमिलरली अब क्या है, अभी तक आपने 2 लाइंस तो सीखी थी, जो क्या कौन कौन सी थी, एक स्ट्रेट जो हम टॉप टू बॉटम डाल रहे हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, एक हम जो लेफ़्ट टू राइट डाल रहे हैं जिसे हम वर्टिकल कह रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, अब ये वाले स्टार में हमने एक लाइन एक कॉर्नर से स्टार्ट की है और ये दूसरे कॉर्नर पे जा रही है। सिमिलरली फिर ये लाइन इस कॉर्नर से स्टार्ट हुई है और ये इस कॉर्नर पे जा रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के साथ साथ एक डायगोनल भी होता है, डायगोनल लाइंस डाली हैं जो लाइंस इस स्टार को फर्दर और डिवाइड कर पा रही हैं और आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर पा रही हैं। अगर हम डायगनली भी इस स्टार को डिवाइड करेंगे तो इसके जो डायगनल साइड्स हैं वो वाली साइड्स भी हमारी क्या होंगी, आइडेंटिकल हाफ्स होंगी एक दूसरे की, एज यू कैन सी। चलिए, अभी तक तो हमने वो शेप्स के बारे में जाना जिनमें कि हम लाइन ऑफ सिमेट्री या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या डायगोनल डालते हैं और हम अपने शेप को एक आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे रहे हैं, उसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि उसका जो भी हाफ पोर्शंस आए हैं वो सारे कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक से दिखते हैं। अभी जो शेप आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस शेप में देखिए, हियर वी कैन नॉट डिवाइड दिस शेप एनी हाउ इंटू आइडेंटिकल हाफ्स। मैं इस शेप को किसी भी तरीके से आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकती। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई, यू कैन ट्राई दिस बाय ड्राइंग द सेम शेप ऑन पेपर, और जिसमें कि आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल लीजिए, चाहे तो वर्टिकल डाल लीजिए, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई बाय द डायगोनल लाइंस ऑल्सो, बट व्हाट यू विल गेट कि वी कैन नॉट डिवाइड दिस शेप इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। Same case is with this shape also. If you will try to divide this shape also in identical halves, you can not divide. Why? Because either if you will put vertical line, horizontal or vertical, but as this is irregular shape, ये सारी साइड से अलग अलग सा हो रहा है, तो हम इस शेप को एक आइडेंटिकल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते। अगर हम इसे टॉप टू बॉटम करते हैं तो भी इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बिल्कुल अलग आता है। अगर हम इसे राइट टू लेफ़्ट करके डिवाइड करते हैं तो भी हमारा अलग आता है। अगर हम डायगनली करते हैं तो भी जो 2 पार्ट्स आ रहे हैं वो आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट डिवाइड दिस शेप इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। लेट्स सी नाउ, हियर few shapes are given, and in these shapes you can also count the lines of symmetry. Why we have given here lines of symmetry? Because we can see कि in how many types we can divide the particular shape into identical halves. For example, in shape number 1, that is square is given. In this square, what it is saying, whether you put horizontal line, vertical line or diagonal, in all these lines you can divide this square shape into identical halves. And if you will count the number of lines, so you can see we have drawn here 4 lines of symmetry, and these all 4 lines of symmetry are dividing this square into identical halves. ठीक है, जैसे अब आप देखिए सेकंड शेप हमारे पास आया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर आप देखते हैं तो रेक्टेंगल को हम कितने तरीके से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस है। एक, हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के देख लेते हैं तो भी हमारा रेक्टेंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और एक हम वर्टिकल लाइंस डाल के देख लेते हैं तो भी हमारा रेक्टेंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, और हम अगर यहाँ लाइंस ऑफ सिमेट्री काउंट करें तो हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली वी हैव रोम्बस। रोम्बस को आप देखिए, हॉरिजॉन्टल डालिए, वर्टिकल डालिए, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री के साथ आप इसे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कई सारे शेप्स दिए हैं, काइट है, ट्रेपेजॉइड है, पैरेललोग्राम है। हियर यू हैव ओनली टू सी द नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे कितने शेप्स ऐसे हैं अभी जिनके बारे में आप नोन नहीं हैं। आवर मोटो इज़ टू टेल यू हाउ टू ड्रॉ द लाइन्स एंड हाउ टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू इक्वल हाफ्स। अभी आपको यहाँ पे शेप्स पे ध्यान नहीं देना, आपको ये देना है कि जो भी शेप बना हुआ है क्या हम उसे इक्वली डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, लेट्स सी नाउ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, जो हमने जो भी करा वो हमने अभी क्या करा उस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार। एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू इन योर मैथ्स फेयर नोटबुक।
आई हैव गिवन दिस होल थिंग एज अ PDF में दिया गया है ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इन चीज़ों को आपने अपने मैथ्स नोटबुक में करना है। कैसे करेंगे? सेम थिंग, यू हैव टू फर्स्ट पुट द डेट, देन क्लास वर्क, फिर चैप्टर नेम डालेंगे, वेयर टू लुक फ्रॉम, then you will put topic number 1, what is symmetry. This is not question, this is a topic, what is symmetry. Then you will start. अब देख लेते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्या करना है वो भी पता चल जाएगा। A line of symmetry is an imaginary line that divides a figure in half. You all know that now. If you fold a figure along a line of symmetry, both sides match. As I told you, now symmetry is found in nature, in art, in common objects, in letters and more. As I have given you examples, symmetry is also referred to as a mirror image. After this, you will draw this shape in your notebook. This is half hour and the whole shape is this. When we have divided this whole shape by this line of symmetry, then it get divided into this way. ये आप कॉपी में बनाएंगे. Then you will write further figures of shapes that have exact resemblance to its other part when divided into two or more equal parts are called symmetrical. अब ऐसे शेप्स जिनको हम लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल शेप्स कहलाते हैं. And the shapes in objects that do not resemble each other when divided into two parts are called asymmetrical. और ऐसे shapes और objects जो कि डिवाइड करने पर अपने पहले वाले पार्ट के इक्वल नहीं दिखता या जो डिवाइड होकर दो हिस्से आए होते हैं वो दोनों हिस्से एक से नहीं दिखते, तो ऐसे शेप्स को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक शेप्स या फिर एसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं. Shapes can have multiple lines of symmetry. आप देखिए यहाँ पे क्या आया है? कैन हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री आया है. आप शेप ऐड कर लीजिएगा. शेप्स कैन हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री और बाकी आप ये शेप्स बना दीजिए और इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री अपनी नोटबुक में दिखा दीजिए. आफ्टर दिस यू हैव टू राइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. क्या कह रहा है कि ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारी वर्टिकल भी हो सकती हैं जैसे फर्स्ट एरो में दिखाया है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं जैसे सेकंड शेप में दिखाया है, और डायगोनल भी हो सकती हैं जैसे थर्ड शेप में दिखाया है. एंड द सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद डिफरेंट शेप्स ऑल्सो कि हम लाइन ऑफ सिमेट्री को वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं और डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन द शेप कि वो कैसे हमारा इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है. After this you have to write this fun fact there that the line of symmetry is also called the mirror line or axis of symmetry, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. And one more fact is there that a circle has a infinite lines of symmetry, कि आप सर्कल में कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं. आप जिस भी साइड से सर्कल में लाइन डालेंगे उसका दूसरा पार्ट क्या होगा? उसका आइडेंटिकल हाफ होगा और दूसरा पार्ट उसकी मिरर इमेज होगा. I hope whatever I have explained you today, you got that thing and you will be able to solve the given questions also. As the same thing whichever I have explained you right now, these all things I have provided you in PDF also. That work you have to do in your notebook, and this question sheet is also in PDF form, but still I am going to explain कि आपको इसमें क्या करना है. देखिए, find and draw all the lines of symmetry on these 2D shapes. You can use a mirror or tracing paper to help. आपको क्या करना है कि जितने भी शेप्स दिए हैं इन शेप्स में एक तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री डालनी है और दूसरा आपको बताना है कि कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एक पर्टिकुलर शेप में आएंगी. One more question I have given you for homework. Here see what it is given, that each object has been divided by an axis passing through the center of the object. Identify if both sides are mirror images of each other. Answer with a yes or no. Here in this question figures are given and they has been divided already by the line of symmetry. Now you have to predict
कि these given line of symmetries are dividing the given object into identical halves or not। जो दिए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री डली है वो लाइन ऑफ सिमेट्री इन ऑब्जेक्ट्स को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो यू हैव टू राइट येस, और अगर नहीं कर रही है तो यू हैव टू राइट नो। से बिल्कुल जैसे ये बना है इस तरीके से ही आपको अपनी कॉपी में इन ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, एंड you have to do neat and clean work. I hope you like this video. Please do your work neat and clean and keep on learning. Thank you and have a nice day.